বিধানসভার প্রার্থী বিজয় ওঝার জনসভায় ওর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি আজ 23শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৬৫ নম্বর জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিজয় ওঝার সমর্থনে ২২শে এপ্রিল বুধবার কালাকার স্ট্রিট ও সত্যনারায়ণ এসি মার্কেটের সংযোগস্থলে ২০২৬ এ নির্বাচনকে সামনে রেখে ওর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জি সমাবেশে যোগদান করেন। মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে বিজেপি সদস্যরা জয় শ্রীরাম জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। বাংলায় নতুন সরকার গড়তে আহ্বান এর ডাক। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকো বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি, মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়, শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠক, বেলেঘাটার প্রার্থী পার্থ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মীনা দেবী পুরোহিত, সুনীতা সমাজদার, কমলেশ সিং জি, প্রমোদ সিং জি, ভানু প্রকাশ মিশ্র জি, অনিল জি, আসাম থেকে রতন লাল নাথ, গোবিন্দ ঠাকুর জি সহ অন্যান্যরা। এরপর মঞ্চে উপস্থিত সকলকে ওড়িয়ে পরিয়ে সম্মান জানান এবং যোগী আদিত্যনাথ জি হাতে মায়ের একটি ফটো তুলে দেন। ভোটকে কেন্দ্র করে এবং রাজ্য সরকারকে বিদায় দিতেই বাংলায় নতুন সরকার গড়তে বিজেপির এই জনসভা যেভাবে সারা বাংলাকে গুন্ডারাজে পরিণত করেছে, নারীদের উপর ধর্ষণ নিপীড়ন শুরু করেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, শিক্ষকদের চাকরি কেড়ে নিয়েছে, টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করেছে, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, বাংলার শিল্পকে ধ্বংস করেছে, গরিবের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে, সেই সরকারকে বাংলা থেকে বিদায় দিতে হবে, তাই পরিবর্তনের দরকার। আপনারা একবার বাংলায় পরিবর্তন আনুন, আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি, যা যা প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার এনেছেন আমরা ৪৫ দিনের মধ্যে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেব, বাংলায় শিল্প গড়ে উঠবে, শিক্ষা গড়ে উঠবে। আর একটা কথা বলবো, আপনারা ভয় পাবেন না, নির্ভয়ে বুথে গিয়ে আপনার নিজের ভোটটি নিজে দেবেন। ২৯ এপ্রিলের ভোট আপনাদের বিবেচনার ভোট, নতুন সরকার গড়ার ভোট, সকাল সকাল ভোট দেবেন, বাংলায় পদ্ম ফুল ফোটাবেন, যাহাতে বাংলায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে, মা বোনেরা সম্মান পান। रिपोर्टर शम्पा दास, कोलकाता, पश्चिमबंग। मैं इस वार्ड 23 में रहती हूँ और मैंने नमस्कार, मेरा नाम रीमा सिंह है। मैं इस वार्ड 23 में रहती हूँ। मैंने बीजेपी अपने पार्षद श्री विजय ओझा जी को देख के ही मैंने ज्वाइन किया था। जो इंसान अपना गली का हर एक बच्चा को अपना बच्चा समझता हो, हर एक बेटी को अपना बेटी समझता हो, उस इंसान पे आज लांछन लगाया जा रहा है कि उनका कोई संतान नहीं है। उनका संतान हम लोग हैं। हम लोग पूरे वार्ड के कार्यकर्ता, पूरा वार्ड उनका है, पूरा वार्ड का बच्चा उनका बच्चा है। क्योंकि मैंने उनको जैसे सामने से देखा है और सामने से सुना है, बहुत मतलब वो ओपन कभी नहीं करते हैं, छुपा के ही बहुत काम करते हैं। किसी का मदद करना हो, भैया हम किसी को बोलिएगा मत, लेकिन हमको पता है ये सब बात। और विषय ये है कि अभी एक कॉल आ रहा है कि पश्चिम बांग्लाয় बीजेपी ক্ষমতায় আসলে মাছ ভাত খেতে দেবে না। ये कौन बोल रहा है? ये बिल्कुल गलत और झूठा बात है। आपका उड़ीसा में देखिए समुद्र है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मछली भात खाता है। बिहार में देखिए वहाँ पे भी इंसान मछली भात खाता है, चिकन मटन सब कुछ खाता है। ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है, आप लोग इस अफवाह पे मत जाइए। और एक कॉल भी आ रहा है, এবার মাসে লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়েছেন তো आगे मासे पाबेन ना, ये सब झूठ है। आपको इस महीने में 1500 मिला है, अगले महीने में आपको 3000 रुपया मिलेगा। ये बीजेपी का दावा है। कथनी करनी एक समान, बीजेपी की यही पहचान, जो बोलते हैं वही करते हैं। आरोप है जो हम सभी महिलाएं घर घर जा करके दे रही हैं। इसको पढ़िए, समझिए। सब मातृशक्ति से मेरा आह्वान है कि जिन जिन तक ये संकल्प पत्र पहुंच गया है पूरे पश्चिम बंगाल में, ये आपका हिंदी में भी है और बांग्ला में भी है, इसको आप लोग पढ़िए और समझिए। ये जो बोल रहे हैं हम लोग मोदी जी संकल्प पत्र, ये आपको पूरा इसका योगदान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पूर्ण तरह से मिलेगा। और एक मैंने देखा है फेसबुक में
कि बोल रहे हैं वो लोग कि आप लोगों को मातृ शक्ति वंदन कार्ड से पैसा कट रहा, ओटीपी मांग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्ड हमारे पास भी आया है, हम भी ये कार्ड फिलअप कर रहे हैं, हम भी जमा कर रहे हैं। हमारा तो 1 रुपया नहीं कटा, और हम जिन जिन महिलाओं का करवाए हैं उनका भी तो अभी तक 1 रुपया नहीं कटा। ये सब अफवाह फैला रहे हैं, और कुछ ऐसे मीडिया वाले होते हैं जो सच को छिपाते हैं और झूठ को दिखाते हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप सच सुनिए, सच समझिए। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उड़ीसा में, बिहार में, वहाँ के मनुष्य के पास जाइए, उन लोगों से बात करिए और समझिए कि वो लोग क्या गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में इतना क्यों बीजेपी को लेकर के अफवाह फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। रीमा सिंह, मैं उत्तर कोलकाता महिला मोर्चा की ट्रेजरर कोषाध्यक्ष हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी 29 अप्रैल 3 नंबर बटन दबा के बीजेपी को, विजय ओझा जी को भारी मतों से विजय बना। मैंने बीच में बीजेपी इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट है, इसलिए, और उनको भारी मतों से विजयी बनाए। और आपसे यही निवेदन है कि एक बार पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। महिलाओं को सुरक्षा के लिए चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहिए, शिक्षा के लिए चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में 8,000 स्कूल बंद है, 26,000 जो टीचर हैं, हम लोग को जो बच्चों को पढ़ाते थे सरकारी स्कूल में, वो सब रोड पे पड़े हुए। क्यों, किस लिए? बीजेपी की सरकार आएंगी, वो 8,000 स्कूल भी खुलेंगी, और 26,000 जो शिक्षक हैं उन लोगों को भी काम मिलेगा। हुआ उसके बारे में कुछ कहें, और आपका परिचय पहले। मेरा नाम विवेक लोहिया है। मैं जोड़ा साहू मंडल 1 के अंतर्गत हूँ, और आज की जनसभा के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। कल रात्रि तक जो सुविधा ऐप हम लोगों की थी उसमें काफी प्रॉब्लम थी, उन लोगों की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहा था। बट रात को भगवान भगवती की है ना कृपा से हम लोगों को परमिशन मिला। और दूसरा, आज के कार्यक्रम में जो समय सीमा थी कि 11:35 से लेके 11:40 के अंदर हमारे योगी जी आएंगे, उस बीच में वो आए, अपना वक्तव्य दिया, और यहाँ की जनता जो है बहुत खुश हुई है और उनको बहुत प्यार दिया है। और उनके प्यार के कारण हम लोगों को आने वाले चुनाव में 29 तारीख को बहुमत से वोट मिलने की चांसेस है। आप लोग जो 4 तारीख को बोल रहे हैं आएंगे, तो आके क्या क्या करिएगा जनता के लिए? आने के बाद तो सबसे पहला काम जो है, ये जो टीएमसी सरकार है, उनके जितने भी नुमाइंदे हैं उनको पहले एक चीज आश्वासन देंगे कि भैया आप लोग भय मुक्त रहिए, ना आपके ऊपर अत्याचार होगा ना अनाचार होगा। दूसरा काम जो हमारी मोदी जी की तरफ से है, आने वाले सामने महीने में ही यदि सरकार बनती है तो 3,000 रुपए जो महिलाओं के लिए उन्होंने अनुदान किया है कि हाँ वो हम देंगे, तो वो जरूर आएगी। और दूसरा, युवा साथी जो है, युवा साथियों को भी है ना बकायदा 3,000 रुपए भी मिलेंगे। और आने वाले टाइम में जैसे ही उनकी नौकरी निकलेगी वो 3,000 रुपए बंद हो जाएंगे और उनको सही तरीके से काम मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों का लक्ष्य है। और प्लस आयुष्मान भारत जो है वो भी हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे, जिससे जो भी है व्यक्ति है वो उस चीज का लाभ उठा सके आयुष्मान भारत का। देखिए जीत के साथ साथ तो हर चीज नहीं हो सकता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है हर चीज व्यवस्थित करने में, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो 3,000 रुपए वाली है वो सामने जैसे ही जीत जाएंगे उसके 1 महीने के बाद ही हम लोग चालू कर देंगे। तो उसमें है ना, जब मोदी जी ने कहा है तो वो चीज एकदम बकायदा एकदम सही तरीके से होगी, क्योंकि मोदी जी की जब गारंटी है तो उसमें सबको, पूरे भारत को विश्वास है। तो कलकत्ता के और बंगाल के वासियों को क्यों नहीं रहेगा, उनको भी मालूम है। जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कई तरह से एनालाइज करके वो लोग बताएं कि बहुत सारे ऐसे नेताओं के ऊपर में क्रिमिनल केस वगैरह है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? जहाँ पे नेम आया तो एक जन का जो पहले से जिसके नाम पे फाइलिंग किया हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी को भी दूध का दूल्हा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जैसे उमेश जी का आपने नाम बोला, मैं जितना तक जानता हूँ आज उमेश जी के बारे में ऐसा कहीं हो नहीं सकता है कि उनके नाम इस चीजों में आए। लेकिन टीएमसी सरकार के अंदर में तो आप यदि खोजोगे तो हर जगह एक न एक आपको नुमाइंदे वही मिलेंगे, घूसखोर, चाकरी चोर, सब यही सब मिलेंगे। मेरा नाम विवेक लोहिया, जोड़ा साहू मंडल 1 में हूँ। हमारे वेस्ट बंगाल में आप आए हैं और क्या जनता के साथ अपील है?
भारत माता की जय। मैं राजेश सिंह कच्छावा राजस्थान जोधपुर से अभी प्रवासी की भूमिका केंद्र सरकार की ओर से जोड़ा साकू विधानसभा व आसपास की विधानसभा में भाजपा का कार्यकर्ता बनकर यहाँ की विधानसभा में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे पिछले काफी दिनों से मोहल्लों में, गलियों में, झुग्गी झोपड़ियों में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रवास भी कर रहे हैं, परंतु हमें ऐसा लग रहा है देश आजाद हुए वर्षों वर्ष हो गए हैं और ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल की धरती आज दिन तक आजादी महसूस नहीं कर रही है। यहाँ गली में जाओ, नुक्कड़ पे जाओ, चाय की दुकान पे जाओ, पान की दुकान पे जाओ, भय का वातावरण है। आदमी कोई खुल के नहीं बोल सकता है। जय श्री राम बोलने पे पाबंदी सी लगी है। अगर कोई मतदाता अपने मत से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देना चाहता है तो टीएमसी के गुंडे उसके घर, दफ्तर, ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ कर देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी निरंतर पश्चिम बंगाल में घूमकर इस भयमुक्त वातावरण को बनाने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अभी जोड़ा साकू में एक भव्य जनसभा की जिससे यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को एक हौसला मिला, कैंडिडेट को हौसला मिला, यहाँ की जनता को हौसला मिला कि अब जोड़ा साकू, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में कमल खिलने को कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार की योजनाएं आमजन में, महिलाओं में, माताओं में, युवाओं में निरंतर चल रही है, हर मातृ शक्ति को सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ही 3000 रुपए की राशि उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इधर आप कमल का बटन दबा के सरकार बनाएंगे, उधर ही गुंडा तत्व या तो कलकत्ता छोड़ेगा या जेल जाएगा। आज देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है, कमल के फूल के साथ खड़ा है। कल भी कुछ सीटों पे चुनाव है, हमारी विधानसभा पर 29 तारीख को चुनाव है। 4 मई को आप देखेंगे कमल का फूल पूरे पश्चिम बंगाल में खिलेगा और भय मुक्त वातावरण होगा। जय हिंद, जय भारत। कि अगर हम पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और सरकार संपूर्ण रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत के साथ आ जाएगी और जब पश्चिम बंगाल के सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार गठन करेगी, हम महिला सुरक्षा की प्राथमिकता देंगे। हम जो बेरोजगार युवा है उनके लिए नए शिल्प कारखाने लाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे, यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार होगा। माताओं बहनों के लिए अन्नपूर्णा भंडार के तहत 3000 रुपया हर महीना उनके अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक उसी तरह मोदी जी ने जैसा बोला था किसान सम्मान निधि, एवं ऐसे बहुत सारे संकल्प और के साथ हम लोग अपनी सरकार को गठन करेंगे। दुर्गा स्क्वाड होगा जो महिला सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। फ्री बस सेवा मिलेगी महिलाओं के लिए। ऐसे बहुत सिर्फ मैं नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के साधारण जनता पश्चिम बंगाल के गुंडा राज से आतंकित है, भयभीत है। तो मोदी जी ने क्या आश्वासन दे के गया यहाँ, वाई आउट वर्षा हिल। मैं ये बोलना चाहता हूँ परिवर्तन का हवा है, परिवर्तन का बदलाव का लोगों के मन में है और इसी विश्वास के साथ आगामी 23 तारीख को एवं 29 तारीख को लोगों साधारण पश्चिम बंगाल के जनता मतदाता दल यहाँ एखाने गणतंत्र सबाई एक साथ जुट हुए एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने का अपने विचार को अपने अधिकार के माध्यम से, वोट के अधिकार माध्यम से इनको बांग्लादेश भेज देगी। इस गुंडागर्दी तानाशाह सरकार को, ममता बनर्जी के सरकार को, अभिषेक बनर्जी के सरकार को, तृणमूल कांग्रेस के गुंडा राज को खत्म करेगी।